and in the sexual sins and in the all the evil desires still in your heart? क्या आप आज भी अपने गुप्त पापों में, शारीरिक पापों में, वासनाओं में, व्यभिचार में, इन चीजों में क्या आज आप फिर भी रहना पसंद करते हैं? Are you still keeping hatred against one another? क्या आज भी आपके हृदय में एक दूसरे के लिए नफरत है? Are you opening your mouth wide against one another? क्या आज भी आपका मुख खुल रहा है कि आप दूसरों की बुराइयां करें, उनकी निंदा करें? Are you still planning how to retaliate someone? क्या आज भी आप यही योजना बना रहे हैं कि मैं इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दूं? The Bible says the battle is the Lord's. Why you and I need to fight for anything? परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़ाई मेरी है, युद्ध मेरा है, तो आप और मैं क्यों लड़े? No, brother, I am offended. नहीं भाई, मुझे तो बहुत ठेस पहुंची है I am betrayed. और मुझे तो धोखा मिला है, I am cheated. मुझे तो इन्होंने फंसा दिया है। Was not your God betrayed? Was not your God offended? Was not your God offense came to your God? Was not your God cheated? Everything happened to your master. Are you and I greater than a master? क्या आपके जो स्वामी है यीशु मसीह, क्या उन्हें ठेस नहीं पहुंची? क्या उन्हें दुख और तकलीफ नहीं हुई? क्या लोगों ने उनकी बुराइयां नहीं की? अगर हमारे स्वामी के लिए ये सब कुछ हुआ है तो क्या हमारे साथ नहीं होगा? क्या हम अपने स्वामी से बढ़कर हैं? Church, the answer is to all your problem is the Lord Holy Spirit. इन सभी का उत्तर आपके पास जो है, कलीसिया में कहूंगा, वो है पवित्र आत्मा। Ask the Spirit of God to instill fear of God in your heart. पवित्र आत्मा से कहें कि प्रभु मेरे हृदय में अपने भय को डाल। Ask the Spirit of God to soften all your emotions. आप पवित्र आत्मा से कहें कि मेरी भावनाओं में आओ पवित्र आत्मा, और मुझे आप नम्र करो, कोमल करो। Ask the Spirit of God to give you such a dislike for every sin and determine to make no peace or friendship with the sin but hate sin. आप इस तरह पवित्र आत्मा का नियंत्रण अपने भावनाओं में मांगे कि प्रभु मैं पाप से घृणा करूं, मैं पाप से नफरत करूं। And I pray in the name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, the Spirit of God can do great transformation in each one of our lives. The Spirit of God will bring us closer to Christ, will break the yoke of bondage, will break every smallest or the greatest of sin out of our life, that there will be no secret sin, there will be no iniquity in our hearts, Yes. and there will be no wall between God and us, there will be no barrier in our lives before God, but we will have an access to a God as a free relationship of a father and son, and we will be transformed in His glory, we will be made new in His glory. Nothing of a flesh will prevail in us, but our inner man will grow, a spiritual man will grow in the name of Jesus, and we will be transformed, beautified, made whole, new, sanctified, set apart for Jesus Christ. Amen, amen. Hallelujah. Yeah. आज हम ये दुआ करेंगे, हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा मेरे सारे गुप्त पापों को, मेरे सारे अधर्मों को मैं चुनता हूँ कि मुझसे दूर हो जाए। पवित्र आत्मा इस कदर आपका नियंत्रण मेरी भावनाओं में आए, मेरे हृदय में आए, कि हर एक चीज प्रभु जो मुझे आपसे दूर करती है, ऐसी हर दीवार जो मुझे आपकी वाणी को सुनने से रोकती है, ऐसी हर बात प्रभु जो आपसे बढ़कर मेरे जीवन में है, आज उसमें परिवर्तन हो, आज उसमें बदलाव हो, और पवित्र आत्मा का नियंत्रण मुझ पे ऐसा रहे कि पिता और मेरे बीच का संबंध, यीशु मसीह और मेरे बीच का संबंध और मीठा और मजबूत और इस प्रकार हो कि मैं प्रभु की आवाज सुन पाऊं। Cry out to Him right now. Say, Lord, don't leave me blind. If there's any delusion or deception in me, expose it to me right now. आप प्रार्थना करें कि यदि प्रभु कोई भ्रम है, कोई आत्मिक अंधापन है, तो यीशु मसीह के नाम से वो चला जाए। Bring the sledgehammer of the Word of God to smash down all the walls of deception and secret sins and iniquity through me now in the name of Jesus. पवित्र आत्मा का ऐसा हथौड़ा आए और जो दीवार, जो पाप की
दीवार है, जो अधर्म की दीवार है, जो भ्रम की दीवार है, जो आत्मिक अंधेपन की दीवार है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से चकनाचूर हो जाएं। I don't want to believe any more lies. I just want to hear your voice, and I want your power and authority and the rule and the dominion of Jesus in our lives. मैं किसी भी झूठ पर विश्वास न करूं, पर पवित्र आत्मा, आप सत्य का आत्मा है और आप मुझे सत्य प्रकट करें। And in the name of Jesus, I proclaim deliverance to the entire congregation. All the viewers be delivered from every weakness and overpower it by the power, overcome it by the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी हमारी कलीसिया है और हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, कि परमेश्वर का आत्मा पर महान रीति से कार्य करे और ये पाप का बंधन आपके जीवन से टूटे यीशु मसीह के नाम से। Just the same chapter, Ezekiel 14 verse 11, the Lord is speaking to them. एज़ेकियल 14:11। Can you read in Hindi, please? That the house of Israel may go no more astray from me. कि मेरा घराना, इज़राइल का घराना अब मुझसे दूर न जाए। The Lord doesn't want us to go astray from Him. प्रभु नहीं चाहते कि हम प्रभु से दूर जाएं। 11th verse. And neither be polluted anymore with all our transgressions. और ना ही पाप की वजह से या अधर्म के वजह से आप दूषित हों। परमेश्वर नहीं चाहता, astray is what है? दूर जाना। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उससे दूर जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप से दूषित हो। And the third thing, but that they may be my people and I may be their God, said the Lord God. मैं चाहता हूँ कि वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी प्रजा बने। यहोवा परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी संतान बने और वो हमारा पिता रहे। जैसे वो पवित्र है, जैसे वो सच्चा है, जैसे वो उसका ईमान, जैसे उसका हर एक कलाम, हर एक वचन जो सच्चा है, वैसे ही आप और मैं नम्र बने, दीन बने और उसके समान पवित्रताई में चले, उसकी सिद्धता को पाए और हम दूर न जाए, हम पाप में न जाए, हम दूषित न हो, हम अपने आप को प्रदूषित न करें पाप से, परंतु हम उसके मार्ग में चलते जाएं और उसके आनंद और उसके प्रतिदिन खुशी में बढ़ते जाएं और एक पिता और पुत्र का जो रिलेशन है वो प्रतिदिन हम पाए। परमेश्वर ये चाहता है। इसके लिए वो अपने जो लीडर्स थे, जो एल्डर्स थे, उनको फटकार रहा है एक नबी के द्वारा, इज़ेकियल के द्वारा, और कहता है कि मैंने तुम्हारे दिलों को जाना है। मैं तुम्हारे चेहरों को नहीं, परंतु मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूं। जो गुप्त पाप और जो अधर्म तुम्हारे अंदर है, मैं उसको तोड़ना चाहता हूं। The Lord wants to break. परमेश्वर इन पापों को तोड़ना चाहते हैं। Before the Lord gives His verdict, इससे पहले कि परमेश्वर अपने शब्द कहें, the Lord said to them, break it now. प्रभु कहते हैं कि अब इसे तोड़िए। Church, as a Christian, we need to break every secret sin, every iniquity out of our lives. और विश्वासी होने के नाते हर एक गुप्त पाप को, हर एक अधर्म को हमें क्या करना है? अपने जीवन से निकाल फेंकना है। Why the Lord is telling us? क्यों प्रभु हमसे कह रहे हैं? Why the Lord is speaking to us? क्यों आज परमेश्वर हमें शब्द दे रहे हैं? Because He wants to make us His very own. क्योंकि प्रभु हमें खुद का बनाना चाहते हैं। Because He wants us in His presence. प्रभु आपको चाहते हैं कि आप उनकी उपस्थिति, उनकी संगति में आए। Whom will I shout? मैं किसे डांटूंगा? I can shout my son. मैं अपने बच्चे को डांट सकता But हूँ। when I shout him, I know it is for his good. पर मैं जब उसे डांटता हूँ, उसे चिल्लाता हूँ, तो किसके लिए? उसकी भलाई के लिए। And when he changes, he is more closer to me. और जब वो बदलता है तो वो मेरे और करीब आता है। This is the application of a human being. और ये है मनुष्य प्रवृत्ति। How much the Lord must be doing it for us. कितना बढ़कर प्रभु हमारे लिए करते The होंगे। Lord is speaking to us, church. प्रभु आपसे बात कर रहे हैं कलीसिया। My people are not able to hear because they are in deception.
मेरे लोग मेरी वाणी को नहीं सुन पा रहे क्योंकि वो भ्रम में फंसे हुए हैं। Iniquities and secret sins are becoming as a wall, as a stumbling block in the relationship between God and His children. अधर्म और गुप्त पाप जो है वो एक दीवार बन रहे हैं परमेश्वर और आपके बीच में। And the Lord is speaking to us, speaking to each and every one of us, that we need to break that wall. और प्रभु हमें कह रहे हैं कि हमें इस दीवार को क्या करना है, तोड़ना है। How come we can break this wall? आप कैसे इस दीवार को तोड़ सकते हैं? Romans 6, Romans 8 says, now we are no more in the dominion of sin. रोमी 8 कहता है कि अब हम पाप की गुलामी में नहीं है। Now sin doesn't reign in a mortal body. अब पाप आपके शरीर पर राज्य नहीं कर सकता। Because we are crucified with Christ, we are dead to the world, we are dead to the sin, and we are resurrected with Christ. हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे पाप, हमारे अधर्म और सारे शरीर के कार्य क्रूसित हुए हैं। 2 Corinthians 5:12 says, 2 कुरिन्थिया 5:12 कहता है, you can just read it, interpret. For we must all appear before the judgment seat of Christ. कि परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख हम सभी को खड़ा रहना है। That everyone may receive the things done in his body according to that he has done. ताकि जो कुछ हमने शरीर में किया है, जो हमने किया है, हम उसे प्राप्त करें। Bible teaches that believers will someday have to give an account of the judgment seat of Christ. और बाइबल हमें सिखाती है कि हम सभी को उस न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़ा रहना है। For all the deeds that we do here on the earth in the body, whether may good, whether may be bad, we have to give an account. चाहे वो चीजें अच्छी हो, चाहे वो चीजें बुरी हो, पर हमें उसका हिसाब देना है। Now concerning the judgment of believers, I want to speak following points that we should keep in mind. अब विश्वासी के न्याय के संबंध में मैं जो कह रहा हूँ, ये चीजें आप अपने मन में रखिए। All Christians will be subject to judgment. There will be no exception. Sorry. और हर एक विश्वासी जो है वो न्याय के लिए उस पर न्याय लागू होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सकता है कि मैं इसमें नहीं हूँ। Romans 14:12 says, रोमी 14:12 that every one of us shall give an account of himself. कि हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने अपना हिसाब देना है। We all have to give an account. हम सभी को हिसाब देना है। Hallelujah. हालेलुया। You know, account is something that we need to give it clean. और जो हिसाब है वो हमें कैसा देना है? स्पष्ट और साफ। And this judgment, और ये जो न्याय है, this judgment will occur when Christ will return for his church. यह न्याय कब होगा? जब मसीह लौटेंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए। And a judge is Christ. और हमारा जज कौन है? यीशु मसीह। Because John 5:22 says, for the Father judgeth no man, but he hath committed all judgment unto the Son. यूहन्ना 5:22 कहता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करते, बस सारा न्याय उन्होंने अपने पुत्र के हाथों में सौंपा है। The Bible speaks about judgment, something very serious. और बाइबल जो जजमेंट है, जो न्याय है, इसके बारे में गंभीरता से कहता है। Because it includes the possibility of damage or loss. क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। 1 Corinthians 3:15 speaks, 1 कुरिन्थिया 3:15 if any man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved by fire. 1 कुरिन्थिया 3:15 कहता है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। Some can be ashamed before his coming. और कुछ लोग लज्जित होंगे परमेश्वर के आगमन पर। Because 1 John 2:28 says, क्योंकि 1 यूहन्ना 2:28. 1 यूहन्ना 2:28 कहता है, It says, and now little children abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before his coming.
और वहां पर लिखा हुआ है कि मेरी छोटी संतान आप उसमें बने रहे, परमेश्वर में बने रहे, ताकि जब वो आए तो आप में हिम्मत रहे, आप लज्जित ना हो परमेश्वर के आगमन पर। Church, the secret sin and iniquity can make a believer ashamed. गुप्त पाप और अधर्म हमें लज्जा का कारण बन सकते हैं हमारे लिए। Some works will be burning. कुछ जो हम कार्य प्रभु के लिए कर रहे हैं वो कार्य जल भी सकते हैं। You know, whole life work what we have done can go in a chaff. और पूरा जीवन भर जो हमने प्रभु के लिए किया है वो आग से जब गुजरेगा तो भूसा बन सकता है। Can you just open your Bibles to 1 Corinthians 3:13? 1 कुरिन्थियों 3:13। Can you read in Hindi, please? तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम परमेश्वर वहां पे प्रकट करेगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। उस दिन हमें मालूम पड़ेगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हमारा जो काम है, जो मसीह के लिए हम करते हैं, वो किस इंटेंशन से करते हैं, किस मोटिव से करते हैं, वो परखा जाएगा परमेश्वर के आगमन पर। जो भी हम काम करें परमेश्वर के लिए वो सच्चाई से करें। जो भी हम गुप्त में भी हैं, जहाँ कोई कलीसिया का मेंबर नहीं है, जहाँ कोई पास्टर्स नहीं है, जहाँ कोई लीडर्स नहीं है, वहां पर भी हम परमेश्वर का भय समझे, क्योंकि हर एक काम परमेश्वर परखेगा। एवरीथिंग विल बी मेड मैनिफेस्ट। हर एक चीज प्रकट होगी। इट विल बी पब्लिकली ओपन। और सभी के सामने वो चीजें होंगी। एंड गॉड विल रिवील अ सीक्रेट एक्ट्स, अ वर्ड्स, अ मोटिव्स, अ एटीट्यूड्स, a ministry, everything will appear plain, clean before God. हमारी सारी सेवा हम जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं उसके पीछे सारे जो मकसद है, जो इरादे हैं, जो कुछ हमने इस पृथ्वी पर किया है वो सारी बातें प्रकट होगी। In some believer will have to give an account of his faithfulness or unfaithfulness to God. और विश्वासी को अपने विश्वास योग्यता का हिसाब या अविश्वास योग्यता का हिसाब देना पड़ेगा। Whether we are faithful to him, whether we are obedient to him, or whether we are disobedient to him or unfaithful to him, that day will bring it open. That day will make it clear what we have done for Christ, because that day will be a day of judgment for all believers. The Lord says, you shall not pass through condemnation, but you will be judged, the Bible says. बाइबल कहती है कि उस दिन हर एक का काम प्रकट होगा और विश्वासी जो है वो न्याय, विश्वासी को दोष नहीं लगाया जाएगा, पर उसका न्याय होगा उनके कार्यों के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं मसीह के लिए। Everything will be made manifest. हर एक चीज प्रकट होगी। And the Lord wants, he says in 1 Corinthians 4:2, 1 कुरिन्थियों 4:2, it is required for the stewards that a man be found faithful. फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। Church, the main thing as a believer, what we need to work for is when the Lord comes, you and I should be called faithful servant of Christ. और जब मसीह प्रकट होंगे, जब हमारे कार्य प्रकट होंगे, तब हमें ये बात देखनी है कि प्रभु हमारे लिए कहे, मेरे विश्वास योग्य संतान। And this coming judgment should make us perfect in the fear of God. और आने वाला न्याय हमें परमेश्वर में सिद्ध करे और परमेश्वर के भय में हमें रखे। This thing should make us sober now. अब ये बात सुनने के बाद हमें क्या करना है? सावधान रहना है। This thing should make us to watch and pray every time. और इस आज के वचन से हमें ये सीखना है कि हम हमेशा प्रार्थना में रहें, हमेशा जागरूक रहें। This thing should draw our lives more to holiness and live in a holy conduct. और हम पवित्रताई में हमारा बर्ताव, हमारा हृदय, हमारा जीवन जो है वो अधिक से अधिक पवित्रताई में चले। We should have more and more of godliness. We should show more and more mercy and kindness to everyone. कि हम दूसरों के प्रति दयालु रहें, दूसरों के प्रति कृपालु रहें और हम अपने बर्ताव को हमेशा चेक करें। I believe today God wants us with His word that every secret sin, every iniquity that we may have, any besetting sin that we may have in this life, today the Lord is speaking to us. Break it, break it, break it.
because you are my child and I am your God. यदि कोई भी ऐसा पाप आपके जीवन में है जो आप बार बार दोहराते हैं, अधर्म है, कोई भी ऐसा गुप्त पाप है आपके हृदय में, तो आइए हम उसे तोड़े आज, और आज हम इन चीजों से बाहर आए हैं। God wants holiness. प्रभु पवित्रता ही चाहते हैं। God wants pureness. प्रभु पवित्रता चाहते हैं। He doesn't like double standards. प्रभु को दुगली स्तर नहीं पसंद है। Inside we may be different and outside we are different. The Lord hates it. अंदर कुछ और बाहर कुछ, परमेश्वर को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। The Lord wants us to be clean. प्रभु चाहते हैं कि आज हम पवित्र हो। The Lord wants us to be holy as He is holy. प्रभु चाहते हैं कि जैसे वे पवित्र हैं वैसे हम भी पवित्र हों। Remember, the judgment will begin in the house of God first. याद रखिए कि न्याय जो है वो परमेश्वर के घराने से शुरू होता है। Let us all have the fear of God. आइए हम सभी अपने हृदय में परमेश्वर के भय को रखें। Before doing anything, इससे पहले कि हम कुछ करें, before speaking anything, इससे पहले कि हम कुछ बोलें, let us have the fear of God. आइए हम अपने हृदय में प्रभु के भय को मांगे। Let us know that every word we have to give an account. याद रखें कि हर शब्द जो हम कह रहे हैं हमें उस शब्द का भी हिसाब देना है। Bible says in the book of Matthew, even if you say raka, that is a fool to your brother, you have to give an account for that word. वचन कहता है कि यदि अपने भाई को राखा यानी कि आप उसे बेवकूफ कहते हैं, हे मूर्ख करके कहते हैं, तो उस शब्द का भी आपको हिसाब देना है। But remember, once you repent with your heart, the blood of Jesus forgives you from all your sins. पर याद रखिए कि जब आप अपने हृदय से प्रायश्चित करते हैं तो यीशु मसीह का लहू आपको आपके सारे पापों से धोकर आपको शुद्ध करता Don't है। think repentance is only for the heathen and the Gentiles, but I'm telling you, repentance is for the believers to repent every day and to come closer to God. याद रखें कि प्रायश्चित करना सिर्फ अविश्वासियों के लिए नहीं है, अन्य जातियों के लिए नहीं है, पर ये हम सभी विश्वासियों के लिए है, ताकि हम प्रायश्चित कर कर परमेश्वर के पास लौट Every आए। day God wants us to transform in His holiness, in His glory, in His righteousness. Not even a single day the Lord wants to see us declining, but God wants to see us that we are coming each day, each step closer to Him. प्रभु चाहते हैं कि हर दिन हम परमेश्वर की और करीब आए, हर दिन हम पवित्रताई में बढ़े। प्रभु चाहते हैं कि हर दिन हम परिवर्तित होते जाए, हर दिन हम परमेश्वर के करीब आते जाएं। Church, the Lord is speaking to us. Let's be serious with Him. आइए आज के दिन से हम परमेश्वर के साथ गंभीर रहें। This is a time where God has given us all the 24 hours in this lockdown, that we need to see more and more in us that, Lord, here is the area that I need to work. Here is the area that I need to work. And when you accept to God your weakness, when you accept it, you will be transformed. इस लॉकडाउन में आइए हम इस समय को ले और हम प्रायश्चित करें और हम परमेश्वर से और करीब आए। ये लॉकडाउन के समय में हम अपने जीवन की जांच करें। Church, the Satan wants you to be in deception and speak to you, you have nothing wrong.